रिव्यूअर्स जो जानते हैं कि ट्रेलर से आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, कौन से जॉनर की मूवी है रेस 3, और फिर भी अपने रिव्यूज में बाद में जाकर लिखती है कि अरे यार ये तो टिपिकल भाई मसाला फिल्म है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? वर यू एक्सपेक्टिंग गॉडफादर? Hey guys, this is Bollywood Bhai and today I'm going to review the movie Race 3. Yes, the Eid Dhamaka release which we all were waiting for. तो हम जानते हैं कि ट्रेलर से और सॉन्ग से हमको ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन surprisingly yes, the movie is much better than what we saw in the trailer. And why is that, you want to know? Let's get started. पहले तो झूठा मारो यार उस बंदे को जिसने ये ट्रेलर अप्रूव किया, जिसने ये ट्रेलर बनाया। बिकॉज ट्रेलर से ही हम जानते हैं कि इतनी नेगेटिविटी हो गई थी कि नोबडी वाज रियली एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ रेस 3। एंड अगर उस हिसाब से देखा जाए तो रेस 3 इज अ मच बेटर मूवी इन कंपैरिजन टू फ्यू ऑफ द अदर सलमान खान रिलीजेस which we really haven't liked in the past. One more thing before I get to the point on what are the pluses of Race 3 and what are the negatives of Race 3, I would just like to say a few things. First of all, my review is not based on the fact that कि Tiger Zinda hai कैसी मूवी थी, एक था टाइगर कैसी मूवी थी. You know what? Everything has its own time and genre. If I go back and watch those movies now, मुझे थोड़ी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी, right? Because वो time अपना रहता है and all of that. Second thing, I have seen that lots and lots of Salman Khan fans were not exactly happy with the Race 3 trailer, और कहीं ना कहीं उनको भी दुख हो रहा था कि भाई यार ये मूवी बच जाए, अच्छी निकल जाए। तो उनके लिए डेफिनेटली एक गुड न्यूज है that Race 3 is much better एक्शन के हिसाब से and Salman Khan of course, and yes there is a surprise element with the star cast. Of course, we are not talking about Daisy, Shoaib और Jacqueline. लेकिन अनिल कपूर और बॉबी देओल को जब आप देखते हैं तो they really justify what they have been standing for in the movie. Second thing, सलमान खान फैन बेस. अब ये तो हम सब जानते ही हैं कि सलमान खान भाई कोई मैच नहीं कर सकता as far as the fan base is concerned. चाहे उनकी एवरेज मूवी हो या फिर सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर्स हो, Salman Khan fans have always stood by him, right? But in the case of Race 3, you see a clear divide between those very extreme positive people जिनको पहले से शायद पता था कि भाई कुछ गलत काम नहीं करेंगे and the movie may turn out to be good even if the songs are not or the trailer is not. Guys, you were right. But I would also like to appreciate those Salman Khan fans जिन्होंने किसी भी हिचकिचाहट के बगैर, अगर उनको कुछ अच्छा नहीं लगा है मूवी के बारे में या ट्रेलर के बारे में, they were very happy to put it out there. अगर हमको पता है कि कुछ अच्छा नहीं जा रहा है तो we should really be vocal about it. क्योंकि अगर बाई चांस खुदा न खास्ता ये मूवी फ्लॉप हो गई, it is the responsibility of the fan base to let their ideals know कि भाई आप कहाँ गलत जा रहे हैं. Let's just get down to those 5 points in Race 3 जिसके लिए आप वेट करेंगे और आपको मूवी में मजा आएगा. First things first, यार ट्रेलर में आपको पता है ना, इट वाज लाइक अ ऑरेंज टिंट और ऑनेस्टली बहुत टैकी लग रहा था ट्रेलर, राइट? ये हम सबको पता है. But when you go to see the movie, the production value इतनी high है as far as locations कह लो, costumes कह लो, the overall look and feel, the cars, the glasses, the style, और मूवी में वो देखने के लिए बहुत आप एक्साइटेड रहेंगे कि वाओ यार क्या बिल्डिंग्स है, क्या रोड्स है, so everything is pitch perfect. Anil Kapoor was a surprise factor from the very beginning that he walks into the frame. Race 2 में वो मुझे पसंद नहीं आए थे. You know, it's a very typical Anil Kapoor, वो चाय वाला कैसा है भाई. Thankfully he has let go all of that and जिसने भी ये कैरेक्टर सोचा है अनिल कपूर के लिए, hats off to that person. Undoubtedly वो अपने परफॉर्मेंस में बहुत ही मेच्योरिटी लाते हैं. He is the father to Daisy and Salim. सलमान खान से वो ऐसे जुड़े हुए हैं कि वो उनके जो बड़े भाई हैं उनके वो बेटे हैं, लेकिन क्योंकि किसी वजह से उनके बड़े भाई की मौत हो गई थी तो उन्होंने अपने बड़े भाई की बीवी से शादी कर ली, इसलिए वो उनका बेटा भी है. सो डेजी और सलीम उनके कजिन भी नहीं लेकिन उसके सौतेले भाई बहन भी हैं.
कहानी इसी के आगे पीछे रिवॉल्व करती रहती है कि कौन किसको मात देता है और कौन आगे बढ़ जाता है इस रेस में. Which brings me to my third point, the biggest twist in the last half an hour of the movie. तो yes, the first half of the movie is very slow. आपको लगेगा भी कि हर सीन जो आ रहा है वो कहाँ जुड़ेगा. सीन्स जा रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, the characters are interacting with each other, but ultimately when you come to know why this particular scene happened, तो आपको लगता है कि wow, the end twist at least is something which nobody would have expected. Action, yes, हमने ट्रेलर में बहुत भरपूर एक्शन देखा, एक्शन ही एक्शन देखा. और अगर कल आपको पता है तो रेस 3 की टीम ने they have launched another trailer which is full of action scenes again. Yes, it is comparable to the Hollywood standards. आपको पता होगा कि some people are running all these YouTube channels जहाँ पे वो लोग ट्रेलर में गलतियां निकालते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ. अरे यार, अगर आप पूरी मूवी देखोगे नहीं तो हाउ विल यू एंड अप टू नो कि भाई ये इस वजह से हुआ था. गाड़ियां टकरा रही हैं, कोई उड़ रहा है, एवरीथिंग मेक्स सेंस व्हेन यू वॉच द मूवी. अभी अगर ट्रेलर में अगर पूरी मूवी दिखानी थी तो व्हाई वुड इवन पीपल गो एंड वॉच द मूवी. यार, इतनी तो अक्ल लगाओ. द नेक्स्ट थिंग ऑन माई लिस्ट इज obviously we haven't spoken about Salman Khan as yet. Salman Khan, that guy carries the whole film on his shoulders. और क्यों नहीं भाई, मूवी बिक ही रही है सलमान खान के नाम से. एक बात जेन्युइनली बताओ गाइस, अगर सलमान खान मूवी में नहीं होते तो शायद you would like skip the movie altogether. Like definitely we don't want to see some people who are there in race 3 right now. Salman Khan looks like $1 million in some scenes. उनके स्पेक्स कह लीजिए, उनके सूट्स, उनके टाइज, उनका चलने का अंदाज, इट्स कंप्लीटली एज अप्रोप्रिएट आई वुड से. ही ऑफ कोर्स प्लेस सिकंदर एंड स्टाइल के मामले में या फिर एग्जीक्यूशन के मामले में ही हैज गिवन हिज 80%. 20% व्हाई नॉट, बिकॉज मुझे कहीं कहीं पे लगा कि वो थोड़े डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं अपने कैरेक्टर को लेकर. इट्स एन आउट एंड आउट सलमान खान फिल्म. बॉबी देओल, I never expected that I would say this. He looks super fit. He looks super stylish. He is back. He's definitely back. But he totally looks interested for a change in what he is doing. बात करते हैं कुछ negative points की अब. डेजी शाह, अगर वो मूवी में नहीं होती तो क्या बिगड़ जाता यार. उसको वैसे भी टांगे दिखाने के लिए ही रखा है मूवी में. Unfortunately. डेजी शाह का जो एक डायलॉग ट्रोल हुआ था, फेमस हुआ था, our business is our business, none of your business. Our business is our business, none of your business. तो ये मूवी में कोई वैल्यू नहीं रखता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, तो उसको ट्रेलर में क्यों रखा गया है. एक अंदर की बात बताऊं, ये डायलॉग सलमान खान ने लिखा है. सेकेंड, मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत स्लो है. मूवी कहीं एज सच आगे बढ़ नहीं रही है, लेकिन जब तक सेकेंड हाफ आता है तो ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ जो मूवी है वो किसी और ने डायरेक्ट की है और सेकेंड हाफ मूवी किसी और ने डायरेक्ट की है. ना ही फर्स्ट हाफ में बैकग्राउंड म्यूजिक का इतना यूज किया गया है, और सलमान खान की इस मूवी में 2 एंट्री दिखाई गई है और दोनों ही काफी अच्छी है, लेकिन बहुत बहुत बेहतर हो सकती थी मेरे हिसाब से. म्यूजिक, सलमान प्लीज नेवर एवर राइट सॉन्ग्स और सिंग सॉन्ग्स इफ दे आर गोइंग टू बी दिस बैड. Oh shit. I was super excited about Heere and Allah Duai Hai. Apart from these songs, they do break the continuity of the movie. Locations बढ़िया बढ़िया बढ़िया, but music के हिसाब से we already know that Race 3 is lacking the punch of his earlier movies. The star factor of Race 3. The last half an hour to 45 minutes of the movie will give you that shock element. There are helicopters, there are cars, there's jungle, there are like big machine guns and there's Salman Khan. Jacqueline का उतना कुछ काम नहीं है मूवी में. She looks gorgeous, but that's about it. So all in all, are you supposed to watch this movie in the theaters? Theater या घर या फिर कहीं नहीं.
yes guys, it's definitely a one-time watch. Salman Khan extravaganza. Yes, there are minuses, but there are pluses as well. जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रही है बेवकूफ, उस रेस का सिकंदर मैं हूँ। Eid Mubarak guys. Yes, so I spent one of my days watching Race 3 और आप भी जरूर जाइए थिएटर्स में, go have a good time. मेरे कल के रिव्यू के बाद कई सारे सलमान खान फैंस ने मुझे ये भी पूछा कि are you giving out an honest review, my tweet review? अरे भाई यार, मुझे अच्छी लगी तो मैं अच्छा ही बोलूंगी। जब मैंने बॉडीगार्ड का नेगेटिव रिव्यू दिया था और क्योंकि मुझे वो मूवी अच्छी नहीं लगी थी तो काफी सारे सलमान खान फैंस ने ही मुझे ट्विटर में ब्लॉक कर दिया था। आई एम डेफिनेटली स्टैंडिंग बाय दिस रिव्यू क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मुझे मजा आया है तो आप लोगों को भी मजा आएगा। कुछ भी ऑलरेडी आपकी expectations क्या थी? Did it match to the expectations? It's always good to know the other audience reviews as well. अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल हियर बॉलीवुड बाय। आई एम नोन एज बॉलीवुड बाय एंड यू कैन ऑफ कोर्स फॉलो मी ऑन ट्विटर एज वेल। ये मेरा हैंडल है। बाय फ्रॉम बॉलीवुड बाय।